हेलो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस में बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए हुए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कोरेंट सोर्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, बिफोर दिस टॉपिक आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड Huygens principal theory, waves, types of waves, and what are the wavefronts and how many type of wavefronts. These topics we have cleared in the video first. In this video, we will discuss current sources, what is interference, how many type of interference, and what is Young's double slit experiment. After that, mathematical conditions for the interference. Current sources. What are current sources? For example, let we have two sources S1 and S2. If S1 and S2 emits the light waves of same frequency, same wavelength, and of constant or same phase, then these sources are called current sources. For example, you can write the definition, students. This is for understanding. Current sources are the sources of light which can emit the light of same frequency, same wavelength, and a constant or same phase. Then the source of light are called coherent sources. For example, students, you can say that if we have two sources and these two sources emits the light of same frequency, same wavelength, and same phase or a constant phase, then these sources are called coherent sources. Listen students, in nature, naturally there are no any two sources are coherent. So firstly we have to make the coherent sources, and after that we have to make the current sources, and after that we will do the interference of light emitted by these two sources. Then question may be asked to you that what are the conditions of formation of current sources. So condition of obtaining current sources, let I discuss with you that the conditions to construct a current sources. Condition to construct current sources. Conditions to construct coherent sources. And these are: first, parent source must be unique. Parent source must be unique. What do you mean by this? If let we have two slits, there is two slits S1 and S2, and here is a source of light. This source of light emits the light in this direction like that, and an observer is stand here. Then what the observer observe that ki light coming from these two sources, so these two sources act as coherent source. So first condition is that कि parent source for the coherent sources must be unique. यानी कि कितने भी स्लिट ले लें हम, 2 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें, उनका जो पेरेंट सोर्स है जहां से वो मतलब जनरेट कर रही है लाइट को, दैट पेरेंट सोर्स मस्ट बी यूनिक, एक होना चाहिए. क्लियर हो गई? तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि पेरेंट सोर्स मस्ट बी यूनिक. सेकंड पॉइंट,
द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। S1 और S2, ऐसा नहीं कि S1 यहाँ 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे S2 ले लिया, नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। डिस्टेंस स्मॉल करने का मोटो है ताकि यहां से जो लाइट निकले और यहां से जो लाइट निकले बेटा, दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस कम से कम हो। लाइट डिस्टेंस कम रखने का मोटो क्या है कि ताकि दोनों लाइट से, यानी कि दोनों जो सोर्सेज हैं वो 2 लाइट इमिट कर रहे हैं, तो दोनों लाइटों में पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू हो वो क्या हो, कम से कम हो, मिनिमम हो। एंड दैट मिनिमम कैन बी अकर ओनली एंड ओनली व्हेन द सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। केवल और केवल कब हो सकते हैं, जब सोर्सेज आपके क्या होंगे, क्लोज होंगे। थर्ड पॉइंट, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स की सिंगल कलर्ड लाइट, सो लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ऐसा नहीं है कि हम व्हाइट लाइट ले लें, व्हाइट लाइट ले लें तो भी हो सकता है, बट इंटरफेरेंस की वो कंडीशन बदल जाएंगी जो नेचुरल होती हैं। तो लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। दीज आर 3 कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट सोर्सेज। फर्स्टली पेरेंट मस्ट बी यूनिक, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल एंड द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो कोहेरेंट वाला टॉपिक बेटा मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और कैसे हम उनको बना सकते हैं। क्लियर हो गया। इससे आगे बढ़िए, अब हम बढ़ते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर कि हाउ कैन वी डिफाइन इंटरफेरेंस। हाउ कैन वी डिफाइन इंटरफेरेंस? If we have these two sources, slits S1, S2 and this is parent source, लाइट ये इमिट कर रहा भाई, ऐसे जाएगी लाइट, लाइट ये भी इमिट कर रहा है। अब जो ये लाइट, ये वाला पोर्शन देखो, इस वाले में इधर वाली लाइट जो वेव्स आ रही है और इधर वाली वेव्स आ रही है, आपस में क्या कर जाएंगी, सुपर इम्पोज। एक वर्ड यूज किया था बेटा, क्या कर जाएंगी, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज करेंगी का इसका मतलब ये हुआ कि एक वेव दूसरी वेव में इंटरमिक्स हो रही है, एक वेव दूसरी वेव में इंटरमिक्स। इंटरमिक्स वर्ड से ही क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। क्या बन रहा है यह वर्ड, इंटरफेरेंस, यानी कि एक वेव दूसरे वेव को के पाथ को इंटरफियर कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। अब ये जो डिस्टर्बेंस बन रहा है आपस में, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट when the light coming from two coherent sources. It is the redistribution of light when the light coming from the two coherent sources. तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, it is the redistribution of light when light coming from two coherent sources, and this is due to the superimposition of waves. आपस में वेव्स का सुपर इम्पोजिशन हो जाने की वजह से इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मेनली देयर इज 2 टाइप्स। 2 टाइप का होता है बेटा। टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आप लिख सकते हैं, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं हिंट दे देता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आपकी 2 वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक वेव ये है और दूसरी वेव है ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई तो रिजल्टेंट बन गया ये, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी होती है, तो वो कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अगर मान लो एक वेव बेटा आपकी है ये और दूसरी वेव है ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज है तो जो सुपरइम्पोज होगी तो वेव आपकी बनेगी ये ऐसी कम एम्पलीट्यूड की। कम एम्पलीट्यूड की हुई तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी आपकी लो, इंटेंसिटी क्या बन गई लो, इंटेंसिटी लो बन गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, व्हेन द रिजल्टेंट वेव हैव हाई इंटेंसिटी देन द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, and when the resultant wave have low intensity then the type of interference is called destructive interference। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा। मैथमेटिकल कंडीशन हम बाद में करेंगे। तो इंटरफेरेंस क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जिसने इंटरफेरेंस को करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली, जिसने इंटरफेरेंस को करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली, दैट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Young's double slit experiment। तो लेट वी हैव टू स्लिट्स, डबल मीन दो है भाई, यहाँ पे दो स्लिट लेनी। दिस इज पेरेंट सोर्स S, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2 एंड दैट इज स्लिट बोलते हैं तो ये स्लिट होगी। इससे बेटा ठीक 2 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा क्या ले लिया हमने, स्क्रीन ले ली। 2 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंटली सेटअप है तो इनकी वैल्यूज है यहाँ पे, ये आपकी 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है। ठीक है, तो यहां से ये लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। तो जो ये सोर्स है S1 और S2, S1 में यहां लिख लेता हूं, S2 यहां लिख लेता हूं, S1 और S2 है जो ये लाइट को कैसे इमिट करेंगे, वेव फ्रंट की फॉर्म में। लाइट को कैसे इमिट करेंगे बेटा, वेव फ्रंट की फॉर्म में। पहला वेव फ्रंट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से ये वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब सेकेंड के बना देते हैं भाई। सेकंड का बनाइए, देखिए डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड, डार्क, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि वाई वी टेक वन डार्क एंड वन डॉटेड लाइन। डार्क और डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक वेव होती है बेटा। इस वेव में जो अपर पार्ट होता है ये आप करस्ट बोलते हैं और नीचे वाला क्या होता है, ट्रफ होता है। करस्ट और ट्रफ, करस्ट को मैंने डार्क लाइन से दिखा रखा है, किसी भी वेव की जो करस्ट है वो डार्क लाइन है और ट्रफ है जो वो डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन आपकी ट्रफ है और डार्क लाइन क्या है, करस्ट। अगर करस्ट करस्ट पे पड़ेगा, ट्रफ ट्रफ पे पड़ेगा, देखो ध्यान से। अगर करस्ट करस्ट पे आ रहा है, ट्रफ ट्रफ पे आया तो वेव क्या हो गई, सेम फेज में, सेम फेज में होगी तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, बड़ी मैग्नीट्यूड की, एम्पलीट्यूड की बन जाएगी। आगे समझ में। तो जहां डार्क डार्क मिल रही है, जहां डॉटेड डॉटेड मिल रही है, वहां तो इंटेंसिटी होगी हाई। जहां डार्क डार्क मिली, डॉटेड डॉटेड मिली, डार्क डार्क मिली, डॉटेड डॉटेड मिली, वहां इंटेंसिटी क्या होगी, हाई। और जहां पे डार्क डॉटेड मिली, डार्क डॉटेड मिलेंगी, वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो। अब जैसे मैं फिगर से बताता हूं कि कहां पे इंटेंसिटी हाई बनेगी और कहां पे इंटेंसिटी लो बनेगी, वो स्क्रीन पे हमें दिखाई देंगी। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये डॉटेड डॉटेड मिल गई, यानी कि करस्ट करस्ट पे, डार्क डार्क ट्रफ ट्रफ पे, फिर डॉटेड डॉटेड, फिर इस तरीके से देखो ये बन रही है। यहां से ये स्ट्रेट लाइन गई, यहां पे आपकी क्या बन गई, ब्राइटनेस, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइटनेस, सेंट्रल ब्राइटनेस। डार्क डार्क डॉटेड डॉटेड, डार्क डार्क डॉटेड डॉटेड, फिगर में आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ से ये डार्क डार्क मिली, डॉटेड डॉटेड, डार्क डार्क डॉटेड डॉटेड। ये थोड़ा सा बेटा क्योंकि सेम सिमेट्री नहीं जा रही है तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बन रहा है। आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक क्या बन गई, ब्राइटनेस। सिमिलरली एक ब्राइटनेस यहां देखिए, ये डार्क डार्क डॉटेड डॉटेड, डार्क डार्क डॉटेड डॉटेड, ये बनेगी ब्राइटनेस।
इनके बीच में देख लीजिए एक मिलेगी, ये देखो डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड, ये डार्क डॉटेड। डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड का मतलब आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब वहां पे इंटेंसिटी लो, इंटेंसिटी लो का मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डार्कनेस को, इंटेंसिटी लो का मतलब डार्कनेस। सिमिलरली डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड, डार्क डॉटेड ये इस तरीके से बने हुए हैं, यहां से भी आप क्या जा सकते हो, एक डार्कनेस के ऊपर जा सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर हमें ये एक बीच में ब्राइटनेस फिर डार्कनेस, दोनों साइड फिर ब्राइटनेस फिर डार्कनेस आ जाएगा, ऊपर फिर डार्कनेस आ जाएगा, इस डार्कनेस के ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, फिर ब्राइटनेस आ जाएगा, ऐसे होते रहेंगे। ये स्क्रीन के ऊपर बेटा हमें कुछ ऐसे पैटर्न मिल रहे हैं, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर बीच में हमें क्या मिला, ब्राइटनेस, इसके ऊपर क्या मिला, डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, और ये डार्कनेस है, ये डार्क, ये डार्क, डार्क, डार्क। तो इस तरीके से मिल रही है। डार्क को आप बेशक से ऐसे भी कर सकते हो तो और अच्छा बन जाएगा कि भैया भाई ये डार्क है, ये जिनमें हमने ये लाइन लगाई है वो डार्क पोर्शन है, और जो ये ब्लैंक छोटा ये आपका ब्राइट पोर्शन है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोली जाती है, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा। एंड दिस इज द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया हमारे को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट, दो स्लिट से करके दिखाया है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारा ये हो रहा है। क्लियर हो गया भाई ये कंप्लीट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे बना इंटरफेरेंस में, वो बता देता हूं मैं। देखो इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे बना, ये मैंने कोई ज्योमेट्री बना ली, यहां पे ये सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर क्या है, ब्राइटनेस है, ये देखो बिल्कुल हाई इंटेंसिटी मिली हुई है, सभी की इंटेंसिटी सेम जाएगी। और तो ये सेंट्रल ब्राइटनेस, फिर ये आगे बता, इसके देखो दोनों साइड डार्कनेस, ये वाली डार्क, ये वाली डार्क, तो ये हो गया फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क। फिर ये आगे ऊपर फिर से ब्राइटनेस, ये आपकी आ गई फर्स्ट ब्राइटनेस, फर्स्ट ब्राइटनेस, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये लिखा हुआ मैंने सेंट्रल ब्राइटनेस। फिर ये सेकंड डार्कनेस, सेकंड डार्कनेस, फिर ये आपका सेकंड ब्राइटनेस, सेकंड ब्राइटनेस। तो इस तरीके का ये आपका जो इंटेंसिटी ग्राफ बनता है, इंटेंसिटी ग्राफ बोल देते हैं इसको भाई फॉर इंटरफेरेंस। फॉर इंटरफेरेंस। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे बेटा, वो आप लैंग्वेज वाली लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं वीडियो के अंदर आप मेरी लैंग्वेज रिपीट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब आपको लिखना है तो। लेट वी हैव टू स्लिट्स, आप ऐसे लिखेंगे, लेट वी हैव टू स्लिट्स विच आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस and a parent source is taken as S, so we can say that S1 and S2, so we can say that S1 and S2 act as coherent sources and hence they emit the light of same frequency, same wavelength and of constant or same phase difference. Then the interference of the light emitted by S1 and S2 occur and the interference pattern we will get on the screen as the central brightness, darkness on the both side. After that brightness we will get on the screen as shown in the figure, as shown in the figure. Then the intensity graph of this diagram we can draw this, and there is central brightness. After that we will get the darkness on the both side of the central brightness and so on. This is called Young's double slit experiment. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने इतना सीखा है। इसके बाद बेटा अब कंडीशंस हम निकालेंगे कि ये जो डार्कनेस बना है, डार्कनेस बना है तो इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे ब्राइटनेस बन रही है वो कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, यानी कि उनकी डार्कनेस और ब्राइटनेस कब आ रही है, कैसे आ रही है, मैथमेटिकल कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जितना हुआ बेटा वो कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।